Hello learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth and a very warm welcome to all of you to your own channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. This is India's first social educational platform where complete coachings of various competitive exams are 100% free. Here we are providing you full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Master Cadre, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and even much more courses we are going to launch in the future. So thank you so much guys for your superb response and regular inspirational comments because these are real motivators for us. Our motto here is to provide absolutely free of cost quality education so to those students who won't be able to afford these exclusive coachings due to their financial constraints or any other reason. So don't worry at all, this channel belongs to you. Those who haven't subscribed this channel yet, immediately subscribe it because this channel is going to become the complete educational hub of all the competitive exams very soon in the future. So in UGC NET preparational series, the topic of higher education, which is the 10th unit of UGC paper 1 is going on currently on this channel, where in this week I taught you polity in detail. So in this video I will discuss the previous year question answers of this topic one by one. Right, the previous year questions of higher education, especially for the subtopic of polity, that is policy, governance and administration. इस पूरे वीक में हमने उसको डिटेल में किया है इसी सब टॉपिक को, और ये लास्ट टॉपिक था हायर एजुकेशन का, उसको हमने डिटेल में कर चुके हैं. ठीक है जी, और उसमें से ही जो है आज के क्वेश्चन आंसर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअली यूजीसी पेपर 1 में, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. सो जस्ट have start with it. First question, which of the following are the fundamental duties? So fundament इस वीक हमने सारी पॉलिटी की है, फंडामेंटल राइट्स किए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी किया है, एंड सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन किया है, प्रीएम्बल किया है, बहुत कुछ किया है पॉलिटी का. जिन्होंने इस वीक की पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की वीडियोस नहीं देखी हैं पहले, थ्रू आउट वीक जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है जी, 5 वीडियोस लॉन्च की हैं इस थ्रू आउट वीक में, वो पहले वन बाय वन देखें. ठीक है जी, और उसके बाद जो है मेरे साथ ये वाली जो वीडियो देख के साथ साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा. देखते हैं चलिए. A is to respect national flag. Yes, this is our fundamental duty. नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल सिंबल्स को, सबको हमें रिस्पेक्ट करना होता है. दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी. सो ये है. B is to protect and improve the natural environment. This is also our fundamental duty to protect and improve our natural resources and environment, right? So this is all. B is also the correct option. And C, for a parent to provide opportunities for education to his her child. Yes, this is also a fundamental duty of each and every parent in our nation, that he or she has to provide the required educational background to his children. So ये भी हमारा fundamental duty में ही involved है. And D option is to protect monuments and places of national importance. This is not under the fundamental duties which is specified in the constitution. ठीक है जी. D option जो है ये हमारी वैसे ही moral responsibility बन जाती है कि चलो हम अपने जो monuments हैं या religious places हैं या spiritual places हैं या जो public places हैं उनको हम जो है protect करके रखें, बट ये constitution में as a fundamental duty जो है ये mention नहीं है. So D option is not correct. So A, B, C, option A, B and C are the fundamental duties as per the Constitution of India. So हमने यहाँ पे correct answer जो है वो select करना है और first option जो है वो right जा रही है according to the question. So A, B, C first जो है, first answer is the right answer, A, B, C, right? So next चलते हैं. Which of the following statements are correct in respect of नीति आयोग? ठीक है जी, नीति आयोग. ठीक है, पहले क्या होता था, हमारी 5 ईयर प्लानिंग होती थी, इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी. ठीक है जी, प्लानिंग कमीशन होता था, वो उसको रिप्लेस कर दिया है आजकल नीति आयोग ने, जिसको हम बोलते हैं थिंक टैंक पॉलिसी. ठीक है जी, तो उसके रिस्पेक्टिव में वो ये बोल रहा है कि नीति आयोग के पर्सपेक्टिव से इसके साथ रिलेटेड कौन कौन सी जो है वो स्टेटमेंट्स राइट हैं वो हमने चूज़ करनी है. सो फर्स्ट ऑप्शन देखें, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी.
ठीक है जी। एंड बी इज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। सी ऑप्शन इज इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए नीति आयोग है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन यहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाता है, हमने उसको सिलेक्ट नहीं करना। सी ऑप्शन क्या है, इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन in respect of नीति आयोग। एंड डी ऑप्शन इज इट इज़ अ थिंक टैंक पॉलिसी। येस, ये भी जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो सी और डी जो ऑप्शंस हैं दीज आर द राइट ऑप्शंस। ए और बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है एज द पर्सपेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। सो सी एंड डी इज़ द राइट ऑप्शंस। तो अभी हमने करेक्ट कोड ढूंढना है। तो आंसर्स जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से जो थर्ड आंसर है विच कंप्राइज ऑफ द सी एंड डी ऑप्शन, दिस इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आज हम जो है टोटल आपके लिए 21 क्वेश्चंस लेके आए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल आगे जाके बढ़ेगा, पहले सिंपल से शुरू करती हूँ मैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत बार रीअपेयर हुए हैं यूजीसी पेपर 1 में हायर एजुकेशन टॉपिक के अंडर। और अगर आज की वीडियो आप देखेंगे तो आपके 2 to 4 मार्क्स, मतलब 2 से लेकर 4 मार्क्स जो हैं आपके बिल्कुल एश्योर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लोकसभा। ठीक है जी, लोकसभा भी पढ़ा था, राज्यसभा भी पढ़ा था, पार्लियामेंट भी पढ़ा था। ठीक है जी, इस वीक हमने सारी पॉलिटी कवर की थी, थोड़ी सी पॉलिटी रह गई है, उसकी 2 वीडियोज़ और आनी है और वो मैं कल और परसों में उसको भी ख़त्म कर दूँगी। तो उसके साथ हमारा हायर एजुकेशन का जो है फुल फ्लेज पूरा कंप्लीट जो है वो यूनिट यूजीसी पेपर 1 के अकॉर्डिंगली सारा का सारा सिलेबस उसका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, जब तक हमने पॉलिटी की है तब तक हम क्वेश्चंस जो हैं करते हैं। इस वीक की जितनी भी पॉलिटी की है उसमें से क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ पिछले 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। ठीक है जी। सो लोकसभा के पर्सपेक्टिव से करेक्ट कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ लोकसभा। येस, लोकसभा के फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने जो है एक साइज़ बनाया हुआ है, एक नंबर ऑफ पर्सन्स जो है उसके ऊपर लिमिट लगाई हुई है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। बी ऑप्शन इज़ द साइज एंड शेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डिटर्मिन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। नो, these are not determined and selected by the election commission। so बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल खारिज हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन इज द फर्स्ट past and the post electoral system is followed। yes, it is followed in the perspective of Lok Sabha, because हम ये statements किस तरह से scrutinize कर रहे हैं विद रिलेशन टू द लोकसभा। ठीक है जी। तो लोकसभा में ए ऑप्शन अभी सही जा रही है, सी ऑप्शन भी सही जा रही है, और जो डी ऑप्शन है वो भी देखते हैं क्या हो रहा है इसका। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ अ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। नहीं, उसका वोट होता है लोकसभा स्पीकर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट हैव, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाती है। सो कौन कौन सी राइट ऑप्शन हुई अभी तक, ए और सी। और जो ये सही ऑप्शन जो है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन। सो यहाँ पे ए आंसर जो है ए एंड सी, इट इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है जी। सो ए और सी कंप्राइजेज इन द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर सिलेक्टेड कोड। तो ए ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको और इस अटेम्प्ट में भी आएंगे, बिकॉज पॉलिटी का जो सेक्शन है बहुत वास्ट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर जो है यूजीसी नेट में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज़। हाँ जी, एडवोकेट जनरल की जो टर्म है वो कितनी होती है या कितनी फिक्स होती है। अब एडवोकेट जनरल कौन होता है, जो स्टेट के रिगार्डिंग स्टेट के जितने भी केसेस हैं वो हैंडल करता है। ठीक है जी। किसी भी स्टेट का, हर एक स्टेट का एडवोकेट जनरल जो है कोर्ट वाइज अलग होता है। तो अब ये देखते हैं कि एडवोकेट जनरल जो है वो उसकी कितनी टर्म होती है, 4 years, 5 years, 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट फिक्स्ड। हाँ जी, इसकी कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना कि उसकी फिक्स टर्म की जाए, बिकॉज एज पर द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स इट वेरीज। ठीक है जी। किसी साल कितनी होती है, किसी साल कितनी होती है, तो ये जो है उसकी फिक्स नहीं होती है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की जो
टर्म ऑफ ऑफिस, ऑफिशियल टर्म है, जितनी देर उसने काम करना है, वो फिक्स बिल्कुल नहीं होता है, इट वेरीज विद द सिचुएशन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समन्ड बाय, ठीक है जी, समन्ड का मतलब होता है कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो कौन कॉल, ठीक है जी, कॉल कर सकता है, मतलब कौन बुला सकता है। ठीक है जी, सो कौन बुला सकता है? सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपको ये भी पता है क्योंकि जब मैंने आपको पार्लियामेंट समझाया था तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट का जो होली सा होली जो हेड है उस वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट जो है वही करता है। द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय ओनली द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। सो ए ऑप्शन और द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच काइंड ऑफ डेट? सो ए ऑप्शन इज 21 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन इज 24 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन इज 21 जून एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7 जुलाई। सो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये माइंड में होना चाहिए कि कौन से मंथ और कौन सी डेट को जो है सिविल सर्विस डे जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है जी, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस? अब यहाँ पे गुड गवर्नेंस के हमने टूल्स जो है वो स्क्रूटिनाइज करने हैं, इसमें से छांटने हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है जी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज सोशल ऑडिट। ठीक है जी, ये बिल्कुल है, सोशल ऑडिट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और एक बेस बन जाता है गुड गवर्नेंस का। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल, ये भी गुड गवर्नेंस के लिए सबकी अपनी अपनी पावर एंड टेरिटरीज जो है वो मेंशन्ड होनी चाहिए। मतलब रोल एम्बिग्विटी, पावर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटीज़ एंड पावर्स जो है बाइफिकेटेड होनी चाहिए फॉर द रनिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये भी राइट है। थर्ड इज सिटीजन्स चार्टर। येस, सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि सिटीजन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, ठीक है जी, सब कुछ जो है वो सिटीजन्स चार्टर में मेंशन होना चाहिए। तो बिल्कुल गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, गुड कंट्रोल के लिए, ठीक है जी, ये सिटीजन चार्टर का जो होना बहुत ज़रूरी है, ये भी सही है। एंड फोर्थ इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। येस, कि सिटीजन जो है, कोई भी पर्सन है, वो किसी भी तरह की जानकारी जो है वो पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज़ से जो भी प्रोडक्ट सर्विस खरीद रहा है उसकी जानकारी किसी भी टाइम पे ले सकता है। तो ये भी उसका राइट है, तो ये भी गुड गवर्नेंस का एक टूल है। ठीक है जी, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे जो हैं ये टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ अ नेशन बनते हैं और इसका राइट ऑप्शन है जिसमें ये सारे ही ऑप्शंस आ रहे हों। सो डी ऑप्शन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डी ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही आ रहे हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन विच काइंड ऑफ दीज ऑप्शंस? कौन से राइट में वो इंस्क्राइब्ड है? ठीक है जी, राइट टू फ्रीडम में है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है, राइट टू इक्वलिटी में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है। तो जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे डिटेल में, मैंने आपको कराया, एक फुल फ्लैज वीडियो आई है इसी वीक मेरी, फंडामेंटल राइट्स पूरे डिटेल में हमने आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स, उसके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी, सब कुछ किया है उसमें। ठीक है जी, तो उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको फट से क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। राइट टू प्रिवेसी जो है इट इज़ इन द फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, इसमें इम्प्लाइड होता है, इसमें इंस्क्राइब्ड होता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज़ इन रिलेशन टू लोकसभा? प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो इन रिलेशन टू लोकसभा, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट का क्वेश्चन नहीं आया, ये एक स्पेसिफिकली एक जो है लोकसभा के पर्सपेक्टिव से जो प्रेसिडेंट की पावर्स जो है उस रिलेशन के साथ क्वेश्चन आया हुआ, कौन कौन सी हैं? ठीक है जी, सो इसमें से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज समनिंग। अभी हमने देखा भी है कि समनिंग जो है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है जी, सो समनिंग है उसके जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट क्या है? एडजर्नमेंट, साइन डाइन। एडजर्नमेंट का मतलब होता है, साइन डाइन का मतलब होता है कि टेम्प्रेरी जो है हम किसी चीज़ को स्थगित कर दें या डेफर कर दें या उसको जो है टेम्प्रेरी होल्ड पे रख दें, एडजर्नमेंट। तो ये एडजर्नमेंट जो है ये प्रेसिडेंट की पावर में नहीं आता है लोकसभा के पर्सपेक्टिव में।
ठीक है जी। सो सेकेंड ऑप्शन जो है साइंड एंड एडजर्नमेंट, ये नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का लीगल मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द एक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट और अ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग इट, ठीक है जी। सो दिस इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन भी जो है प्रेसिडेंट हो करते हैं इन रिलेशन टू द लोकसभा, ये उसकी पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। एंड फोर्थ इज डिसोल्यूशन, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। तो ये इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्टिव परस्पेक्टिव ऑफ द लोकसभा पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो ये सी ऑप्शन जो है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आ रही है, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है जी। और बाकी सारे जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही जो है इसमें आपकी नॉलेज पॉलिटी की बहुत ज़्यादा जो है काम करती है। आपको पॉलिटी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये जो है आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। और यूजीसी पेपर 1 में इतना टाइम भी नहीं होता कि बहुत सोचें या बहुत डेप्थ में जाएं। पॉलिटी की नॉलेज हो तो फटाफट से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, हो सकते हैं हमारे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड। 2 सेशंस का बीच का जो इंटरवल है, इट शुड नॉट एक्सीड कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबको पता होता है और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है जी। द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ, मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो अगला सेशन जो है पार्लियामेंट का कंडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 6 मंथ्स। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज़ फॉलोड बाय 2 आर्गूमेंट्स, ठीक है जी। अब ये आर्गूमेंट्स की फॉर्म में स्टेटमेंट्स 2 आई हैं, सॉरी एक स्टेटमेंट आई है और इसके 2 आर्गूमेंट्स आए हैं। अब आपने ये देखना है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जो हैं वो मतलब आप कह सकते हो दिमाग लगाकर सोचने वाले होते हैं कि कौन सा आर्गूमेंट जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है, तो ये देखना पड़ता है, ठीक है, जिसको समझना पड़ता है। सो स्टेटमेंट में जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं हमारे आर्गूमेंट्स उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। स्टेटमेंट के बाहर जाके हमने आर्गूमेंट्स को जस्टिफाई नहीं करना, स्टेटमेंट के अंदर रहकर ही जो स्टेटमेंट हमें ऊपर दी गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी ही हमने आर्गूमेंट जो है उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट जो है वो बताना होता है। सो स्टेटमेंट क्या है? शुड पर्सन्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड बी बैंड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कहता है कि जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ठीक है जी, उनको इलेक्शंस जो हैं नहीं लड़ने चाहिए और उनको क्रिमिनल बैकग्राउंड के पर्सन्स को इलेक्शन लड़ने से जो है बैन कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है जी। सो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। कहता है यस इट विल डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स, इट विल डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स का मतलब है यस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का पर्सन पॉलिटिक्स में आएगा तो इट विल डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड का पर्सन आने से क्रिमिनल केस, मतलब आप कह सकते हो क्रिमिनल मेंटालिटी, क्रिमिनल क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, ठीक है जी। किसमें? हमारी पॉलिटिक्स में, बिकॉज उसकी साइकी, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा उसकी साइकी तो क्रिमिनल ही रहती है, वो फितरत नहीं छोड़ता अपनी। तो ये ऐसा जो अगर आर्ग्यूमेंट आए है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज एज अगर हम स्टेटमेंट के साथ इसको जोड़ें तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि persons with criminal background should be banned from contesting elections because it will decriminalize politics. Yes, this is a strong argument. And second is no, it will encourage the ruling party of the to file. No, it will encourage the ruling party to file frivolous cases against their political opponents. तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसा अगर होगा तो रूलिंग जो अलग दूसरी पार्टी है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर जो है बेबुनियाद केसेस जो हैं या हरासमेंट के केसेस या ऐसे ही फ्रिवलस केसेस जो हैं वो कह सकते हैं कि इसने ऐसा किया वैसे किया, तो ये तो वैसे भी होता है, ठीक है जी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आए पॉलिटिक्स में, रूलिंग पार्टी में या ना आए, तब भी ओपोनेंट पार्टी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा ही देती है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है।
ठीक है जी, बी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज रूलिंग पार्टी के ऊपर हमेशा ये एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि ओपोनेंट पार्टी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रूलिंग पार्टी के ऊपर कभी भी कोई भी इल्ज़ाम या फ्रिवलस केसेस जो है वो थोप सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आएगा तभी वो थोपेंगे ऐसा कुछ नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आए चाहे ना आए, ऐसी चीज़ें तो होती रहती है पॉलिटिक्स में। तो बी ऑप्शन जो है वो नहीं जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, वो वीक आर्गुमेंट हो जाता है। ठीक है जी, सो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग एज पर द स्टेटमेंट गिवन। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिगार्डिंग कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, जो सही है वही आपका आंसर है। ठीक है जी, अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन इज, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नो, ही डजेंट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्लेजर में कौन उसका ऑफिस संभालता है, हाँ जी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है उसके प्लेजर में उसका गद्दी संभालता है प्रेसिडेंट की। तो इसको कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो संभालता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है जी, सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज, ही कैन बी सस्पेंडेड पेंडिंग एन इंक्वायरी। बिल्कुल गलत। ठीक है जी, ही कैनॉट बी सस्पेंडेड, सो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गई। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, ही कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बिल्कुल सही, ही कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर कोई मिसकंडक्ट जो है वो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई मिसकंडक्ट हो जाता है या फिर कोई इनकैपेसिटी में डिसीजन हो जाता है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उसके पद से हटा भी सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट अभी सही निकल करके आए, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, और सेकंड और थर्ड जो है इट इज़ नॉट करेक्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, तो ऑप्शंस में देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो लिखी गई है, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, बिकॉज सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। अब ये देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो करेक्ट वाले नहीं पूछ रहा, ये ऑड वन आउट वाला जो है केस बन जाता है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सब सारे किए विच आर करेक्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विच आर नॉट करेक्ट। अब हमने इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है, करेक्ट वाली नहीं ढूंढनी है यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सबसे सुप्रीम पावर है ये, जैसे मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो पर्सन्स होते हैं, वो पर्सन होता है कि जो होली से होली गवर्नमेंट का जो लीगल मैटर्स देखते हैं, लीगल मैटर्स को सॉल्व करते हैं, लीगल मैटर्स के कर्ता धर्ता जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है जी, तो उनके पर्सपेक्टिव में कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही है, ये नहीं पूछा कि कौन सी सही है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही है, तो ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो गलत ही तो हमारा आंसर है, गलत ही ढूंढनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो सही है। ठीक है जी, हमने गलत वाली जो चूज़ करनी वो हमारा आंसर है। सेकेंड इज, ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस in all the courts of the country. Yes, he has the right of audience in all the courts of the country. Yes, कि वो कोर्ट्स का करता धरता है, जो अटॉर्नी जनरल है उसके ऊपर कोई भी नहीं होता है लीगल केसेस के, लीगल मैटर्स के मामले में। तो येस, जो सेकंड ऑप्शन है उसके पर्सपेक्टिव से करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमने इनकरेक्ट आंसर जो है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढनी है। तो सेकेंड को क्रॉस कर दीजिए। थर्ड इज, he has the right to take part in the proceedings of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Yes, he has the right to take part. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट वाली तो हमारा आंसर होना ही नहीं है, हमने तो इनकरेक्ट छाड़नी है, तो थर्ड वाले को भी क्रॉस कर दीजिए। फोर्थ इज, he has a fixed tenure। नहीं, इसका कोई भी he has a fixed tenure, इसका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है।
तो जो नहीं होता है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी, विद रिस्पेक्टिव ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही हमने ढूंढनी है। तो फोर्थ इनकरेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, वो हमारा आंसर नहीं बन सकती हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन वेयर फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर डिस्प्लेड। सो आर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग prefix President Pranab Mukherjee desires to be discontinued while interacting with Indian dignitaries as well as the official notings। हाँ जी, प्रणब मुखर्जी ने जब हमारे प्रेसिडेंट रह चुके प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने क्या किया था, कौन सी ऐसी जो है इंडियन डिग्नेटरीज या एज वेल एज ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को उन्होंने डिसकंटिन्यू करवा दिया था कि ये जो है कह सकते हैं कि ये नहीं चलेगा आगे से, ठीक है जी। सो किस तरह की उन्होंने नोटिंग्स और किस तरह की इंडियन डिग्नेटरीज को डिसकंटिन्यू है वो करवाया था, ठीक है जी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज़ हिज एक्सीलेंसी, सेकंड इज़ महामहिम, थर्ड इज़ ऑनरेबल एंड फोर्थ इज़ श्री एंड श्रीमती, ठीक है जी। सो सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट एंड सेकंड, हिज एक्सीलेंसी, महामहिम, इस तरह के जो टाइटल्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करवा दिया गया था कि कोई भी अपने आप को प्रिंस नहीं कहेगा, प्रिंसेस नहीं कहेगा, एक्सीलेंसी नहीं कहेगा, महामहिम नहीं कहेगा। ये पुराने ज़माने में चलते थे, ठीक है जी, ब्रिटिशर्स के हमारे ज़माने में चलते थे, हिज एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, ठीक है जी। इस तरह के जो टाइटल्स हैं या डिग्नेटरीज हैं, ठीक है जी, इस तरह के जो शीर्षक हैं उन्होंने डिसकंटिन्यू करवाए थे। कोई भी किसी को ना कहेगा ना अपने आप को कहलवाएगा। तो कौन से हैं जो उन्होंने डिसकंटिन्यू करवाए थे? फर्स्ट एंड सेकंड, हिज एक्सीलेंसी, महामहिम, ये डिसकंटिन्यू हो गए थे। और ऑनरेबल एंड श्री एंड श्रीमती, ये अभी भी चलते हैं। ऑनरेबल सर, ठीक है जी, ऑनरेबल मैम, ये अभी भी चलते हैं। श्रीमान श्रीमती अभी भी चलते हैं। श्री एंड श्रीमती ये चलते हैं। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर द कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी। जब पूरे देश में एमरजेंसी कंडीशंस जो हैं वो लग जाती है, फाइनेंशियल एमरजेंसी घोषित की जाती है, तो उस केस में कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो उसके अंडर आती हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंडर आती हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी अबॉलिश्ड। बिल्कुल नहीं, ये कभी भी अबॉलिश नहीं होती है, चाहे जितनी मर्जी एमरजेंसी हो जाए। ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स। येस, हम अपने बजट्स को कम कर सकते हैं, ठीक है जी, अपने एक्सपेंडिचर्स, खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंसर्न में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड। हाँ जी, ये भी सही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है और लेसन कर दी जाती है, ठीक है जी, एज पर द इमरजेंसी कंडीशंस। तो ये भी सही है। एंड फोर्थ इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी सस्पेंडेड। कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है जी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में, किसी भी तरह की इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है कोई भी खारिज या अबॉलिश नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट राइट। तो यहाँ पे कौन सी सही ऑप्शंस जो हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंडर आ रही हैं? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है आंसर्स में से देखिए स्क्रीन के ऊपर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले हो रही हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द बी आर अम्बेडकर। तो कौन से हैं? हाँ जी, इस तरह के जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे राइट्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन से राइट को हम क्या कहते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा राइट कहलाता है? बहुत ही ईजी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं फुलफिल हो पाता या किसी का हक जो है कोई छीन लेता है, तो बिल्कुल वो इट इज़ एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो ये कौन कहता है? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहता है। तभी इसको जो है, इस राइट को हमारे
BR अम्बेडकर जी ने जो है वो कहा था कि इसको घोषित कर दिया था कि ये जो राइट है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द BR अम्बेडकर। ठीक है जी, सो राइट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इंक्लूड। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो ड्यूटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड करते हैं, हाँ जी देखते हैं। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, बिल्कुल सही है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकंड इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। थर्ड इज रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है जी, बट हमें करनी नहीं चाहिए, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, बट ये फंडामेंटल ड्यूटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है जी, मेंशन नहीं है। फोर्थ इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन्ड है। टोटल 10 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने पूरी वीडियो आपको कराई थी। 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं और 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है जी। सो इनमें से हमने छांट लिया कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हाँ जी, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़, हाँ जी, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या है इसमें, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो ये हमें पता है, सबको बहुत जनरल क्वेश्चन है। हमारा जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, स्टेट यहाँ पे नेशन और इंडिया को कहा गया है। सो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैंने अभी डिस्कस ही किया था पिछले क्वेश्चन में। तो प्लेजर का मतलब होता है कि जब टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे इंडिया के कहीं टेम्परेरी बेसिस पे कहीं और किसी और कंट्री में भ्रमण करने चले जाते हैं, या कोई मीटिंग करने चले जाते हैं, या कोई और काम उनको सौंप दिया जाता है, ठीक है जी, वो कहीं और बिजी हो जाते हैं, उनकी एब्सेंस में, ठीक है जी, उस टेम्परेरी सिचुएशन में उनकी गद्दी को या उनकी जो पावर को या अथॉरिटी को कौन होल्ड करेगा, ठीक है जी, कौन होल्ड करता है, डी ऑप्शन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड रन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन लाइकिंग्स। सो कौन सा आर्टिकल है माइनॉरिटी वाइज, मैंने आपको कराया था आर्टिकल 30, बिल्कुल राइट, आपने सही सोचा, आर्टिकल 30, सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 30 जो है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है, माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को, ठीक है जी। सो यहाँ पे आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। जल्दी से लाइक करें हमारे वीडियो को, जल्दी से अभी के अभी लाइक का बटन दबाएं, जल्दी से लाइक करें हमारी जो है। और आपको ये बता दूं कि इस चैनल के ऊपर सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस साइमल्टेनियसली जो है उनकी कोचिंग्स चल रही हैं। लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स यूजीसी ऑनलाइन मंत्रा पे ही चल रही हैं। हिंदी की यूजीसी पेपर 2 की कोचिंग चल रही है, और जल्दी फ्यूचर में हम और भी कोर्सेज लेके आ रहे हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने बहुत सारे, मतलब पूरे थ्रू आउट इंडिया में इस चैनल को शेयर करें, बिकॉज 100% फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल फ्लेज कोचिंग जो है कोर्सेज़ की दे रहे हैं आपको, कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं हैं, ठीक है जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई आपकी क्वेरी है या आपकी कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।